নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই আজি ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত তেওঁ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাৰায়ণপুৰত কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেওঁ গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাতেই মন্তব্য কৰি কৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচন অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন আৰু মহাজোঁটে কেইখন আসন পাব তাক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই। 2021ত মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰিছে। নাৰায়ণপুৰত আজি কেইবাখনো সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তাতে তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে মহাজোঁটে 2021ত 101খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। তাৰ লগতে বিজেপিৰ চৰকাৰখনকো তেওঁ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই কৈছে যে শাসনত থকাৰ বাবে শাসনত অহাৰ বাবে বিজেপিয়ে বহু মিছা কথা কৈ আহিছে আৰু সেইবাবে বিপিএফে বা তেওঁলোকৰ সংগীসকলে এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰি মহাজোঁটলৈ আহিছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইদৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কেইবাখনো সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল। এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কেইবাখনো জনসভাতো কেইবাটাও অনুষ্ঠানতো তেওঁ কংগ্ৰেছৰ অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ভৱিষ্যৎবাণী কৰি কৈছে যে 2021ত মহাজোঁটে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব, 101খন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তাৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে যে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন অসমত হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন বুলি উল্লেখ কৰিছে। ধাৰাবাহিকভাৱে কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু তাৰ মাজতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা আহিছে, ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আমি আপোনালোকক সেই মন্তব্য দেখুৱাই দিছোঁ। रोजगार के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तमाम वादे किए जो पूरे नहीं किए। और ये चुनाव मेरी समझ में असम के अस्तित्व का चुनाव है। इसमें असम के लोग चुनाव जितवाएंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी अभी मैम डिमांड कर रहा है 100 प्लस तो महाजोट के और होंगे 101 बीपीएफ भी आ गया। जी आपने देखा उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो काफ़ी लोग छोड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। और भाजपा को कोई जो जनता चाहती है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता चाहते हैं किसी भी हालत में। सत्ता के लिए झूठ बोलेंगे, सत्ता के लिए झूठे वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे। तो जनता तो समझदार है, समझ लेती है। रोजगार के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तमाम वादे किए जो पूरे नहीं किए। और ये चुनाव मेरी समझ में असम के अस्तित्व का चुनाव है। इसमें असम के लोग चुनाव जितवाएंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी अभी मैम डिमांड कर रहा है 100 प्लस तो महाजोट के और होंगे 101 बीपीएफ भी आ गया। जी आपने देखा उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो काफ़ी लोग छोड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। और भाजपा को कोई जो जनता चाहती है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता चाहते हैं किसी भी हालत में। सत्ता के लिए झूठ बोलेंगे, सत्ता के लिए झूठे वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे। तो जनता तो समझदार है, समझ लेती है। मेरी समझ में असम के हैं, रोजगार के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तमाम वादे किए जो पूरे नहीं किए। और ये चुनाव मेरी समझ में असम के अस्तित्व का चुनाव है। इसमें असम के लोग चुनाव जितवाएंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी अभी मैम डिमांड कर रहा है 100 प्लस तो महाजोट के और होंगे 101 बीपीएफ भी आ गया। जी आपने देखा उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो काफ़ी लोग छोड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। और भाजपा को कोई जो जनता चाहती है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता चाहते हैं किसी भी हालत में। सत्ता के लिए झूठ बोलेंगे, सत्ता के लिए झूठे वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे। तो जनता तो समझदार है, समझ लेती है।
रोजगार के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तमाम वादे किए जो पूरे नहीं किए। और ये चुनाव मेरी समझ में असम के अस्तित्व का चुनाव है। इसमें असम के लोग चुनाव जितवाएंगे क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी अभी मैम डिमांड कर रहा है 100+। 100+। आप तो महाजोट के और होंगे 101 बीपीएफ भी आ गया। जी, आपने देखा उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो काफ़ी लोग छोड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। और भाजपा को कोई जो जनता चाहती है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता चाहते हैं किसी भी हालत में, सत्ता के लिए झूठ बोलेंगे, सत्ता के लिए झूठे वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे। तो जनता तो समझदार है, समझ लेती है।